तो बेसिकली आज के सेशन में हम क्या करेंगे कि रीड ओनली कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे ऑलवेज ऑन में, ये देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 नोट का बनाया हुआ है, मुझे पिछले सेशन में हमने देखा था AG1 और AG2। यहाँ पे हमारा टेस्ट डेटाबेस है, टेस्ट डेटाबेस है। तो यहाँ पे हमने अभी कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि अगर हम टेस्ट डेटाबेस, इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं, हमारा जो ऑलवेज ऑन किस नाम से है, टेस्ट एजी के नाम से। तो इसकी हम प्रॉपर्टी देखते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक है जनरल, फिर बैकअप प्रेफरेंस, परमिशन और रीड ओनली राउटिंग। तो फिलहाल हम इस पे भी फोकस करते हैं, जनरल पे। यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे देखिए प्राइमरी है ये मेरा, अभी प्राइमरी है, सेकेंडरी है मेरा। सिंक्रोनस कमिट अवेलेबिलिटी नोड मैंने चूज़ किया है। सिंक्रोनस कमिट का मतलब ये होता है कि अगर हमने नोड सिंक्रोनस कमिट चूज़ किया है तो हमारा फेलोवर जब होगा तो हमारा डेटा लॉस नहीं होगा, ठीक है। और अगर असिंक्रोनस कमिट होता है तो उस केस में क्या होता है कि डेटा लॉस के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो सिंक्रोनस कमिट जब भी आप, जैसे ऑलवेज ऑन में 3 नोड का अगर सपोज ले लिए, तो एक नोड हमारा जो होगा वो सिंक्रोनस में रखेंगे, ठीक है। अगर 8 नोड का है तो हम 8 नोड में हम 3 नोड रख सकते हैं सिंक्रोनस कमिट, ठीक है। इसी तरीके से कि कुछ नोड सिंक्रोनस कमिट में होते हैं, और जब ऑटो फेलोवर होता है तो सिंक्रोनस कमिट वाले नोड पे ही ऑटो फेलोवर होकर के जाएगा। मतलब जो प्राइमरी बनेगा वो सिंक्रोनस कमिट वाला ही नोड बनेगा, ना कि अनसिंक्रोनस कमिट का नोड, ठीक है। तो तो अब बेसिकली ये है कि यहाँ पे हम जब भी ऑलवेज ऑन हमने कॉन्फ़िगर किया है, तो रीडेबल सेकेंडरी की बात मैं कर रहा हूँ। यहाँ पे रीडेबल सेकेंडरी क्या है कि आपका जो सेकेंडरी नोड होगा वो, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। इट शुड बी लाइक देयर आर 3 प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज नो, second one is readable intent only, and third one is yes. Means suppose I just change this property to no for both node, okay, and just click OK. So just refresh this SQL instance 1 and 2. Okay, now you can see that currently this one is the primary one. NG1 is my primary node here currently. So the database is like I am able to access the database here, okay. But if you just check out that node 2, it is not accessible. The database test is not accessible. Why? Because I just changed the readable secondary is no. What my point? I just changed the readable secondary to no. Means if my AG1 N1 node is primary, okay, then what happen? Then if it is here, just see,
I said readable secondary is no. Now I am just changed to readable secondary yes. So if this is primary, then this one is the secondary node. Understand? This one is a primary and this one is a secondary. So I just changed the role that readable secondary no and yes. What does it means? Just apply it and just see the effect. Refresh it. And now this database is accessible. Why? Because I am just changing this property to yes here. If this one is my primary, so this one is my secondary. In that case, I just change to no. Yes, means my secondary node is accessible. Just reverse back. I'm just failure. You can use the command prompt to failover also, or you can using GUI you can failover. So for GUI, if you want to failover, just right click on the availability group and just click on the failover option. So now I'm just put out just to failover to my secondary node. Now this one is my secondary and this one is my primary. So what happened at this level? Am I able to like access the DB? No. Because why? No, because no. Because Readable, here if you just check out this property, here I am saying just see this. If my AG1 is primary, so sorry, AG2 is my primary now and AG1 is my secondary. So the secondary is no here. That's why it is not accessible. Okay. So the picture is clear now. So if it is readable secondary is no, it means that whenever the failure happen and the secondary node instance means SQL SSMS, the database is browsable or not. You can, it's depend upon you. Okay, so I just choose here, if I am just choosing yes and I just modify it, so then just refresh it and now you can see that the database is accessible. So this is the beauty of this feature, that readable secondary is yes and no. What is the difference between readable secondary yes and no? You can like this example, it is clear that. Now I'm focusing on the third feature, that is read intent only. So here the purpose of read intent only, that I want that suppose my secondary database is active and the application able to connect the secondary database. Okay, so I just make these two changes. Just here I have only two node AG1 and AG2, so I just only apply this feature here and just click on OK. Okay, just a minute.
So first I just failure it. Okay. Okay, so now my primary like readable secondary is readable intent. Here I'm just change it to the readable secondary is read intent only. So the purpose is that I want to use my secondary instance for reporting purpose. It is a read-only database, but user access this database using for a reporting purpose. So in always on, the application is connecting. Suppose if you configure the always on, so application connecting AG1 or AG2? No, it is connecting through the listener. So I already configured the listener, and that is the test AG listen. So I just show you. So SQL, basically you can connect SQL server using SQL CMD. CMD is a utility. Using SQL CMD you can connect SQL server through command prompt. So I just show you how to connect the SQL CMD using SQL server using SQL CMD. Just type the SQL CMD capital S. Here I am putting the capital S, mine does hyphen S, it is represent that server name. So here is my server name, that is test AG listener. I just put the port. So this is the port number, and I just use E. E is used basically I am using my window login. I am able my window login through Windows user ID and password. I am able just want to connect this, so that's why I am using E. If you want to connect using SQL ID, you can provide U. Suppose if you want, I just show you both way. So first I just try to connect using my window authentication. So I just put -E. Okay, and put enter. So using this way I am able to connect the SQL server. Okay, if you want to see which computer currently you are connecting, because here now AG1 is my primary server, okay, and AG2 is my secondary one. So I just want to connect, because it is a primary. When I just use the listener to connect, by default I am connecting primary server. So how can I check this? I just put it this command, select ** server name, and just click go. So basically there it's not understand the semicolon, so I have to just put the
Go means just execute this command. So here you can see that AG1N1, it is my current node where I am connecting, but I want to connect my AG2. How is it possible? The current node, this is possible using read only intent. So when I just supply there are few argument, I just show you. First just I close it. Okay, using command, this is the window authentication. You can see I just give you one more example using how can we connect using SQL user ID and password. So I just put this user ID and password here, and just if you just show it, the same command I'm executing. Here I'm using SQL authentication. So -u is the SQL user ID and -p, capital P, is a password. So this way you can connect the SQL like window authentication as well as SQL authentication to listener. Okay, so now I am just doing couple of things like here. I have a command I have written that I want to just do some changes. So I just copy these few command here. I have already written it, and I just paste it. I will share, and I'll share this command to you. So I just copied it and just paste it here. Okay, so these are the few commands using you can find out how to configure the read only. You can either configure using GUI or you can configure using command prompt. I will show you both the way. So I just want to configure this for secondary instance. That readable secondary means the secondary instance, the application like application can directly connect to secondary instance, and in this way my both instance will usable. Like there is a load balancing that if the user is connecting for the reporting purpose is connect to secondary instance. So how can secondary instance connect? It request come to the AG listener and it route this request to secondary instance. So for that there is little change need to be done. Just click on here. I just skip this step, preferences. I will come on this point on later on. Permission is nothing here, just go to this one. So here I've just done few things. So how I find out these points? First thing here, in general, if AG1N1 is my primary, so this is the endpoint. I just copy this endpoint TCP AG1 SQL.local. I just simply copy it. Okay, and for AG2 endpoint is this one. So I just copy these two URL. Okay, once I just copied it, so I just came to here and I simply paste it here for both, but the port number I have changed it here. Why? If you just see
here the port number is 5022. It's my end point, but not here. Here I've changed the port number. Just see, go to the from where you find out this. For this SQL instance, this is my, I am on N1. You can just see here, this is my just a minute. This is my port SQL instance N1. If you just go to the command prompt, host name AG1. So AG1 is my first instance at 40. Okay, so here the port is 57872. Just come to the secondary instance, that is my AG2. Here I just show you, type the command host name here, you can see that it's a AG2, and I just verify the port number for AG2 is this one, the same port. So that's why when I just configuring read only routing, I put the port number AG1 port number 57872, AG2 port number 57872. Okay, so if the port number is, suppose if it is not the this one, that 57872, if it is by default port it's 1433, then I have to put 1433. Okay, so it totally depend upon whatever the port the SQL Server instance having, use the same port. Okay, so I'm using these two port. And what is this? Read only routing list. So it is the purpose of this read only routing. Here only we have only two instances, 1 and 2. So I just, like, suppose if AG1 is your primary, so by default the AG2 is my readable secondary. If AG2 is my second primary, then AG1 is my secondary. So here you can map this. Okay, if you just click on here the two node, both node is like showing here, you can just add it here. This is the way. If it is, suppose if there is multiple, like suppose currently we have only one secondary instance, but suppose if there is multiple SQL instance, one more instance or two or more instance, in that case we have to set priority. Which one is the primary, which one the secondary. So after completing this, I just show you, I just add one more node. Okay, and after that we can set the priority and all, so it will little bit clear your confusion if you have anything. So here the only the priority, that read only routing list. Suppose if this AGN1 is my primary, in that case my secondary readable instance is AG2N2, and if AGN2N2 is my primary, then AGN1 is my secondary. So I have just set this readable routing feature here. So is that clear? Anything, any doubt, any question? Means सिंपली कि अगर आपका AG1 N1 जो आपका अगर प्राइमरी होगा तो AG2 N2 is your secondary,
और अगर आप AG2 इंटू प्राइमरी है तो दूसरा नोड आपका सेकेंडरी नोड होगा, और जो रूटिंग होगी मतलब जो कनेक्शन आएगा वो दूसरे नोड पे डाइवर्ट हो जाएगा। ये हमने रीड ओनली इंटेंट की कॉन्फ़िगरेशन में हमने जो राउटिंग करी है वो इसका यूज है। तो बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा कि जब हम व्हेन वी ट्राई टू कनेक्ट इट हियर, when we try to connect using SQL Server using our window authentication, the primary node is connecting every time. Okay, so here is a one more command. Just suppose if you want to just put -d. -d means you can specify the database name, means you are directly connecting to the database. If you just put it here, okay, sorry, I just put in between these two, so just see what happened. If you directly execute this command, understand, because I am directly connecting the test data DB. Okay, that's why I am able to execute this. So but my purpose is to connect on secondary instance. If you connect using test AG directly, you are not specifying intent only. What I am saying that you have to mention in your config application intent. Until unless if you are not mentioning this thing, you are not divert to secondary instance. So how can just specify these things using here? There is one more parameter you have to supply, test DB, and capital K. Capital K indicates application intent, and just mention it read only. Just be careful about this command. Capital K, I am again just telling this thing. Capital K represent application intent and read only. Application intent read only. I just connect it, and now if you just execute, it is executing, there is no issue. But here the beauty is this command is, if you just type the server name and go, it is AG2. Understand? Now I am connecting to my secondary instance. Why? Because I am here mentioning that application intent. So once I am application mentioning this, specifically is mentioning this application intent, then I am route to secondary instance. So it means the readable, that routing is working here. And if you not put this point, if you not mention this point, then what happened? Suppose I just withdraw this point and I just enter it, and now I put the same thing. You can see that it's a AG1 and 1. So this is the scenario is that just I want to show that how to configure the read only routing and read only in AG. So is that clear? Any specific question? Any? और अगर ब्राउज़र से कनेक्ट करना है तो ये आप ब्राउज़र से भी कर सकते हैं। बेसिकली मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आप ऑप्शन में आओगे, एप्लीकेशन यहाँ पे पुट करना है मुझे, एप्लीकेशन,
application intent. Okay, read only, sorry. Okay, now I'm just connecting. Okay, and if you just see here, just a minute, huh? Property. Okay, just a minute. Just first disconnect it. Here I have to mention that application intent equal to read only, and the correct one. Maybe that there is some syntax error. I will show you, just a minute. Just hold on now. I just again connecting it.
Yeah. So basically this using this way we can configure the secondary node instance for a repeatable routing. So now I'm just going to tell you what the purpose of how can we configure the backup in uh, always on. So basically what happened that we have two node A and node B. So suppose there are multiple preferences here. If you just check out, so prefer secondary only, primary any replica. Okay, so suppose I just click on this option. So what does it mean? Prefer secondary means prefer secondary means the backup preference is like always secondary node, either it is full backup or T-log backup. Okay, so it prefer the secondary node. Backup is not happening on primary node, only happen on primary node when secondary is down, then it is backup is happening on primary. So it is saying that prefer secondary means the preference is secondary node, but if anyhow the secondary node is not available, the primary backup is generated on primary. The second one is secondary only. Secondary only, it means backup is only generated on secondary. If suppose anyhow if secondary is not available, then backup is not generating on primary, and primary means backup is generated on primary. Any replica means backup is generating on any replica, and here the priority is set. Whose priority is higher, the backup is generated on that replica, and if it is not available, then it is generated on secondary replica. So we will come one by one to see what happened, the differences. Okay, but it doesn't mean that if you just check mark that prefer secondary in always on, and if you execute the command backup database on primary, so what happen. मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज करिए कि आपने अभी बैकअप चूज किया है प्रेफर सेकेंडरी, और वो फिर भी नहीं हो पा रहा है, और क्या होगा कि अगर हमने बैकअप चूज किया है प्रेफर सेकेंडरी या सेकेंडरी ओनली एजी के केस में, और मैंने कमांड चला दिया बैकअप डेटाबेस ऑन प्राइमरी, तो क्या होगा, बैकअप नहीं होगा। इसके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, बैकअप हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ, सपोज करो मैंने सेकेंडरी लिया है, ठीक है, मैं ओके कर देता हूँ, बराबर। ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसके पीछे एक मिनट में वही देख रहा था कि बेसिकली हमने कुछ गड़बड़ करी है, क्या है एप्लीकेशन इंटेंट।
देखता है 1 मिनट, क्योंकि ये ब्राउजिंग सर्विस चल रहा है बंद है हाँ एसक्यूएल ब्राउजर एसक्यूएल ब्राउज़र नहीं एसक्यूएल ब्राउज़र का नहीं दिक्कत है, मुझे देखना था कि ये कैसे लिए है। 1 मिनट है ना, एप्लीकेशन इंटेंट लिखा तो बराबर है, टू रीड है ना, एप्लीकेशन इंटेंट टू रीड ओनली। हाँ ये तो बराबर लिखा हुआ है। पर ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ऐसा होने के बावजूद भी यहाँ नोड AG2 आना चाहिए था, है ना, क्योंकि हम अभी हमारा प्राइमरी है तो सेकेंडरी पे हम कनेक्ट होने चाहिए, जबकि कमांड प्रॉम्प्ट से हो रहा है ना, कमांड प्रॉम्प्ट से हमने देख लिया ऑलरेडी, इसके अंदर भी होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है। है तो ऑप्शन यही है, अब इसमें केस में पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। लेट्स सी। We are able to connect using command prompt, but here it is also need to be connected. Okay, just leave it, we'll check out this thing. So now I'm just my preferred, like I'm talking about the backup. So here the backup is secondary only and I am on the primary one. 40 is my primary. Okay, so now I'm just going to execute the backup command. So suppose I just delete it all the backup here. Okay, this is my database and I just go to backup, delete it, test. What is the time? 3:54. Dot back. I just put it. Backup database command successfully. You can just see here. Backup is generated. Okay, but here we have configured the backup on secondary only. Only for secondary one. So it doesn't means that you are not able to generate the backup on primary. When you just execute this command, it is executing. So what the purpose of this, doing this? Yeah, there is a purpose. Basically, when you have just create a job, now I am just creating a job here. I am just this is my maintenance plan. If you don't know about that maintenance plan, I will tell you how to create a maintenance plan. Maintenance plan is basically that
you are performing some DB activity like system, like integrity check, okay, backup, log backup, update stats. So these are the maintenance plan. So how can we create this plan? I'll just show you. Suppose just right click, new wizard, new maintenance plan. So I have just created one earlier, so I've just modified it. Either you can new maintenance plan or modify it. I just modified it. Okay. So this window is open. So here I just add subplan. By default there is one plan is here, so I just add this one. And for backup database task, there is a toolbar. Just click on here, drag and drop. Okay, drag and drop. So this is the simple thing. I've just already done it. Double click on it. Okay, here I am specifying the same database. The database is testdb. I just check mark either if it is planning for the system databases or user databases. You have just mentioned it. Just choose it. Here I am just only need to just, there is only one database, testdb. So I just choose the testdb here and just click on it. Okay, so my purpose is to generate the backup. This is the default folder location here, and compress backup, and I just click on the copy only. I'm choosing this copy only. You can choose the full also, but here I'm choosing only the copy only, because this backup, like suppose if it is my secondary instance and you are not check mark on the copy only on secondary, so that backup become fail. I will show you. Okay, so that's why the copy only is the safer command for that. So copy only just I'm choosing. Yes, okay, and I just schedule it also 5-minute interval. It is executing. Okay, so now I'm executing it. Currently I am in on primary one, and this is my plan for database backup. And you can see that in this folder there is only one backup file. So when I generating this backup, it is the backup is generating here by default. So what happened? I just generate it. Just see what happened. Backup is succeeded, but there is no backup is generating here. Understand why? This is why, because if We have selecting that. uh, We have selected secondary only. yes, there is a command you can, like, I will show you. So this is the command. Basically this command decide that where the backup is generated or not. If you just execute, I just close it. Okay, just paste it this, and here just change a database name. Okay, so it is showing, is it the preferred database backup? If this instance is a preferred database backup instance, it
it is showing no, 0. Understand? So here you have mentioned that secondary, my preferred backup is secondary, so that's why it is executing. Whenever you are executing this command, it is showing 0. So basically what happened, the scheduler, if you are trying to create the backup using scheduler, so the scheduler is using this command. This command, I just show you this command. Basically declare preferred replication int, select this one here, just change the database name. I just show you this is the basically whenever you are executing a scheduler or job, so it is using this way. So here I am changing this one, test TB. Okay, but what happened here, just see, if we just I just try to execute it, it is executed successfully here, but nothing is happen here. The command is executed. Why? Because here if you just selected, the command is only executed, the backup is only happening when the preferred replica will be 1, but in my case it is 0. If you just choose this command, it is 0, so that's why it is not executing. So the backup job is every time it is executing like that way. So it check the backup, preferred backup, preference backup. So if it is checking with the AG, कि बेसिकली वो चेक करता है कि AG में आपने क्या मेंशन किया हुआ है. AG के अंदर आपने मेंशन किया हुआ है कि आपका प्रिफर्ड बैकअप लोकेशन सेकेंडरी होगा, तो जब आप प्राइमरी पे एग्जीक्यूट करोगे तो क्या होगा कि भाई वहाँ पे तो रिटर्न 0 ही आने वाला है, और जब रिटर्न 0 आने वाला तो वहाँ बैकअप नहीं होगा. कमांड एग्जीक्यूट सक्सेसफुली होगा पर वो बैकअप जनरेट नहीं करेगा. अच्छा, अब अगर मैं यही कमांड मैं सेकेंडरी पे एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पे मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये लोकेशन ही नहीं है यहाँ पे अभी. समझ में आया आप? अब अगर सपोज करो ये मेरा सेकेंडरी है, अब मैं कनेक्ट करता हूँ सेकेंडरी को. सेकेंडरी को मैंने कनेक्ट किया अभी, ठीक है. तो अब यहाँ पे मैंने सेकेंडरी को कनेक्ट किया और यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे मैंने जॉब, यहाँ पे भी मैंने जॉब बना रखा है, यहाँ पे मैंने इसे एग्जीक्यूट कर दिया. हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं 4:03 पे. चार बज के 3 मिनट पे सेकेंडरी पे चेक करें. चलिए ये हम आते हैं यहाँ पे, ये मेरा सेकेंडरी और ये मेरा बैकअप लोकेशन है. ये सेकेंडरी है, इस पे आते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं. ये मेरा बैकअप लोकेशन है, तो मैं इसको सॉर्ट कर देता हूँ डेट वाइज. 4 बज के, ये देखिए 4:04 पे बैकअप एक बन के आ गया. तो मेरा प्रेफर्ड लोकेशन क्या था? सेकेंडरी. ठीक है. अब अगर किसी वजह से अगर मैंने सिर्फ ये कमांड लिख दिया बैकअप डेटाबेस और उस पर कमांड एग्जीक्यूट कर दिया तो मेरा कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगा. पर अगर शेड्यूलर के थ्रू चलाएंगे तो वो ये भी चेक करेगा कि मेरा प्रिफर्ड बैकअप क्या सेट किया हुआ है एजी के अंदर. इसलिए इंटरव्यू में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मैंने सपोज कर लो मेरा एजी मैंने कॉन्फ़िगर किया है और
मेरे किसी भाई ने, मेरे किसी कोलीग ने प्राइमरी वाले पे बैकअप चला दिया, बैकअप डेटाबेस डीबी बैकअप का कमांड एग्जीक्यूट करते हो, क्या होगा? तो बैकअप हो जाएगा, उसमें क्या करेंगे, क्योंकि आपने कमांड चला दिया है। लेकिन अगर वही हम शेड्यूलर के थ्रू चलाएंगे तो क्या होगा? शेड्यूलर के थ्रू चलाएंगे तो शेड्यूलर तो ये चेक करेगा कि प्रिफर्ड बैकअप क्या है। अगर प्राइमरी है तो वहां जनरेट कर देगा, अगर प्राइमरी नहीं है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा पर कुछ होगा नहीं। बैकअप तो जनरेट जिस लोकेशन पे होना है वहीं पे होगा। ठीक है। अब अगर यही मेरा अच्छा, मेरे पास अगर सपोज कर लीजिए कि लॉग बैकअप के केस में क्या होता होगा। ये तो बैकअप का केस था कि मेरा प्राइमरी है या सेकेंडरी है, कैसे क्या होगा। लॉग बैकअप के केस में क्या होगा, मेरे पास दो, मतलब एक सेकेंडरी नहीं है, मेरे पास दो सेकेंडरी हैं। तो उस केस में कैसे जनरेट होगा लॉग बैकअप? तो उसकी मैकेनिज्म क्या है कि सपोज कर लो एक लोकेशन पर अगर बैकअप जनरेट होता है और मैंने प्रेफर्ड बैकअप लोकेशन सेकेंडरी मैंने कर रखा है ना, सेकेंडरी मैंने कर रखा है, तो वो क्या करेगा, वहां पे प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी कि मेरे पास अभी एक काम करते हैं कि अभी एक और एजी में एक और नोड डाल देते हैं, फिर उसको चेक करते हैं कि कैसे बैकअप बनेगा। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि बेसिकली ऐसा क्या होगा। तो वो चेक ये करेगा कि बेसिकली वो कि अब मेरा सेकेंडरी में मेरे पास दो नोड हो गए हैं, तो मेरी प्रायोरिटी सेट हो जाएगी कि भाई मेरा बैकअप पहले किस नोड पे जाएगा, वहाँ पे प्रायोरिटी मुझे सेट करनी पड़ेगी 1 2। तो जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी उस पे मेरा बैकअप पहले जनरेट होगा, अगर वो किसी वजह से अवेलेबल नहीं हुआ तो दूसरे वाले नोड पे जाएगा। ठीक है। तो करता क्या है कि जब भी बैकअप सेकेंडरी पे जनरेट करेगा वो, तो दूसरे वाले, अब ऐसा नहीं है आपने सभी जगह शेड्यूल कर रखा है, जॉब तो आपने बना ही रखा है, आप जॉब सब पे बनाओगे, तो वो क्या करेगा, जब भी बैकअप जनरेट होता है तो एक बल्क लॉग जो का बल्क ऑफ बोलते हैं, बल्क ऑफ टर्मिनोलॉजी है, बल्क ऑफ। तो वो क्या करेगा कि दूसरे नोड को भी बताता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली ये है टर्मिनोलॉजी, बल्क ऑफ जो है। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि वो आपको ये बता देगा कि भाई जैसे एक नोड पे अगर मैंने बैकअप जनरेट किया है तो दूसरे वाले नोड को ये बता देता है कि भैया कि मैं बैकअप परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है। एक एक्नॉलेजमेंट वो दूसरे नोडों को भेज देता है, और ये बैकअप का उसका सीक्वेंस नंबर है। कभी भी बैकअप का जो चेन है वो ब्रेक नहीं होने वाला है। बैकअप कहीं पे जनरेट हो, दूसरे वाले नोड पे जनरेट हुआ, उसने एक्नॉलेजमेंट दूसरे नोड को, प्राइमरी को और दूसरे नोड को भेज दिया बल्क ऑफ के जरिए, नोटिफिकेशन कि ये मेरा ट्रांजैक्शन लॉग का ये आईडी है, यहाँ से यहाँ तक का मैंने बैकअप लिया है, ये सारा सर्कुलेट हो जाता है। और आप बैकअप किसी पे भी शिफ्ट करते रहें, आपका जो चेन होगा वो कभी ब्रेक नहीं होगा। ठीक है। तो ये बेसिकली एक मैकेनिज्म है। अब जैसे मैं यहाँ दिखा रहा था कि अब देखिए यहाँ पे दो और बैकअप जनरेट हो गए, ये मेरे ट्रांजैक्शन लॉग बैकअप हो गए, मेरा प्रेफर्ड लोकेशन ये था। अब मैं क्या करता हूँ कि सपोज करो मेरा प्रेफर्ड लोकेशन मैं चेंज कर दूं या फेल ओवर कर दूं। फेल ओवर अभी मैं कर देता हूँ, सपोज कर लो, तो क्या होगा, अब मैं फेल ओवर कर देता हूँ। मैंने आ गया और
और यहाँ पे मैंने फेल ओवर कर दिया। तो अब देखेंगे कि आप अब सेकेंडरी मेरा क्या हो जाएगा, AG-N1 वाला सेकेंडरी मेरा हो जाएगा। तो वहां पे क्या होगा, बैकअप वहां जनरेटर चालू हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं। मेरे हिसाब से कुछ चेंज नहीं होना चाहिए। नहीं, चेंज हो जाएगा। अभी तो चेंज है अब ये क्योंकि सेकेंडरी हो गया तो ना, ऑलरेडी बेसिकली ये सेकेंडरी हो गया। अब प्रेफर्ड लोकेशन मेरा प्राइम सेकेंडरी है, तो बैकअप अब मेरा यहाँ जनरेट हो जाएगा। अब जैसे सपोज करो मैंने एग्जीक्यूट किया इस कमांड को, अब आप देखो, ये देखो। तो ये है बेसिकली। आप अच्छा एक काम करते हैं कि एनी-वन वाला हम केस करके देखते हैं, एनी-वन वाला केस। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें और हम एनी-वन वाले केस को अब थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। अब ये क्या रह गया कि कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, अभी चेक करते हैं उसको भी। एनी-वन के केस में क्या है कि यहाँ पे हम अभी हमेशा ये प्राइम, जब भी हम इसमें कोई चेंजेस, तभी हम क्या कर रहे थे कि हमने सेकेंडरी से चेंज किया था, इसलिए हमको एरर आ रहा था। जब भी हम करेंगे कोई भी चेंज, तो जो हमारा प्राइमरी प्रेफर्ड नोड है उसी नोड से हम अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी आके अब हमें क्या करना है कि बैकअप प्रेफरेंस हम एनी नोड करना। अच्छा, एनी-वन नोड में अब यहाँ पे जो आप जिसको प्रायोरिटी सेट करोगे, सपोज करो मैंने प्रायोरिटी सेट कर दी सेकेंडरी नोड को, मैंने 51 कर दिया, लोएस्ट 1 हाईएस्ट 100 52 कर दिया सपोज करो। तो अभी मेरा बैकअप किस पे जनरेट होगा, ये AG2 वाले पे होगा। ठीक है, अब देखो ये मेरा प्राइमरी है, तो बैकअप मेरा यहीं पे जनरेट होने वाला है। अब मैंने एग्जीक्यूट किया अगर, तो आप देखो बैकअप और जनरेट हो गया है, क्यों नहीं जनरेट हुआ, यहाँ तो होना चाहिए, अभी सेकेंडरी हो गया ना ये। एक मिनट रिफ्रेश करते हैं, सेकेंडरी है तो ओके। प्राइमरी पे होगा नीचे वाला मेंटेनेंस के। नहीं हाँ, नहीं अभी हमने क्या चेंज कर दिया ना कि बेसिकली क्या किया हमने, प्रायोरिटी सेट कर ली ना बैकअप की, कि जिसकी बैकअप प्रायोरिटी लोएस्ट 1 और हाईएस्ट 100, तो सेकंड पे होना चाहिए बाय डिफॉल्ट इस पे। सेकंड पे क्यों नहीं हो रहा? एक मिनट, अच्छा इसकी प्रायोरिटी हमने अभी हायर कर रखी है ना, ये मतलब बेसिकली क्या किया हमने, AG-N1-2 की प्रॉपर्टी एनी हमने लिखा था यहाँ पे, और हमने क्या किया था कि AG-1N2 की प्रॉपर्टी हायर कर दी थी। 52। तो अब बैकअप भाई इसी पे जनरेट होगी ना, नोड 2 पे, नोड 2 वाले पे देखते हैं। बैकअप इस पे चलाते हैं तो जनरेट होगी। हम नोड 2 पे बैकअप चलाओ भाई, जैसे ये है मेरा, अब यहाँ पे मैंने, अब मैं बैकअप चलाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा नोड 2 है और ये देखिए बैकअप जनरेट हो गया। ठीक है सर, तो बेसिकली क्या है कि प्रेफर्ड एनी में हम जिसको प्रेफरेंस देंगे
उस पे सेट होगा। प्राइमरी पे क्या है कि प्राइमरी पे बाय डिफॉल्ट प्राइमरी पे जनरेट होगा, सेकेंडरी ओनली पे वैसे सेकेंडरी पे ही होगा। वैसे बैकअप आप किसी भी नोड पे भी ले सकते हो कमांड से। और मेंटेनेंस प्लान पे। जब भी हम शेड्यूलर के थ्रू लेंगे तो वो ये भी देखेगा कि एजी के अंदर आपने क्या सेटिंग करी है, एजी के अकॉर्डिंग ही सेटिंग। जॉब आपकी बराबर चलेगी सक्सेस, लेकिन बैकअप उसी पे जनरेट होगा जहां पे हमने एजी में जो सेटिंग करी है उसी नोड पे बैकअप जनरेट होगा। ठीक है, तो ये ओके। टोटल मतलब आपका एक तरीके से समझ लीजिए कि ऑलवेज ऑन फीचर में हो गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जैसे पैचिंग कैसे करते हैं, है ना। ये पैचिंग का तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि पैचिंग जब भी हमें करनी होती है तो हम मैं करके दिखाता हूँ। एक नोड पे पैचिंग करते हैं तो बेसिकली हमारा ये कौन सा है वर्जन है हमारा 2019। ठीक है, तो 2019 के लिए हमने पैच डाउनलोड किए हुए हैं। ये पैच हमारा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि दोनों पे हम पेस्ट कर देते हैं। इस पे पेस्ट कर देते हैं और इस पे भी पेस्ट कर देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि जो हमारा नोड है, पहले फेलओवर जो ऑटोमेटिक हो रहा है उसको हम मैनुअल कर देंगे, पहला काम। ठीक है, और जो हमारी जॉब है कि जैसे प्राइमरी टू सेकेंडरी जो डेटा सीडिंग वाली जॉब है वो सारे हमें स्टॉप कर देंगे या पॉज कर देंगे, तो जॉब ना चले। अब हम क्या करेंगे कि लोड शिफ्ट कर देंगे। पहला काम तो पहले हम लोड शिफ्ट कर देंगे। लोड शिफ्ट करने के बाद मतलब जो भी प्राइमरी पे हमें चला वो सेकेंडरी पे हम कर देंगे। ठीक है, अब जैसे सपोज कर लीजिए अभी हमारा, मैं इसकी बात कर रहा हूं, तो अभी के केस में हमारा प्राइमरी इंस्टेंस कौन सा है? अभी के केस में हमारा प्राइमरी इंस्टेंस है नोड सेकेंड, है ना, AG2। नोड सेकेंड है। तो अब पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे जाते हैं प्राइमरी वाले पे जाएंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी में आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, पहले फेलओवर जो ऑटोमेटिक आ रहा है उसको आप कर दो मैनुअल। एक काम तो ये करना है, ठीक है, कि मैनुअल फेलओवर हो। और दूसरा है कि यहाँ पे ये है डेटा जो मूवमेंट आ रहा है ना, दूसरे नेट पे जो डेटा मूवमेंट हो रहा है हम उसे सस्पेंड कर देते हैं। दूसरे नोड पे जो डेटा मूवमेंट हो रहा है वो अभी हमने पॉज कर दिया। ठीक है, बराबर। अब हमारा क्या होगा कि हमारा AG1 फ्री हो गया। हम कनेक्ट अभी भी कर पा रहे हैं डेटाबेस को, देखते हैं। सेकेंडरी इंस्टेंस तो नहीं कनेक्ट होगा क्योंकि वो तो हमारा बंद है, लेकिन प्राइमरी वाला हमारा कनेक्ट अभी भी चलेगा क्योंकि वो चलता ही रहेगा, है ना। प्राइमरी है अभी। अब हम क्या किए कि हमारा प्राइमरी है, हमने लोड, अब हम क्या करेंगे इसमें, ये हमने प्राइमरी पे तो कर ही दिया सारा कुछ, है ना। अब हम सिंपली इस पैच को हमने चला देते हैं। तो दो काम करने हैं हमने। पहला काम करना है कि लोड शिफ्ट कर देना है। जो
ऑटो फेलोवर था उसको हमें मैनुअल फेलोवर करना है, और जो डेटा मोड ट्रांसफर मोड था उसे हम सस्पेंड कर देंगे, उसे भी फिलहाल के लिए बंद कर देते हैं। अब जो भी हमारा पैचेस वगैरह है हमने उसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद सिस्टम को रिबूट कर लेना है। रिबूट करने के बाद जब अप होकर के सिस्टम आता है तो फिर उसे मैनुअल को आप ऑटो कर दीजिए और डेटा जो ट्रांसफर मोड था उसे रिज्यूम कर दीजिए। और सेम जो है पहले इस नोड पे ला करके डेटा को इधर से ट्रांसफर कर लेते हैं फेलोवर करके प्राइमरी पे, फिर उसको कर लेंगे और फिर से वही काम करेंगे सेकेंडरी के लिए भी। अच्छा, जो ऑटो सीडिंग होता है, बेसिकली ऑटो सीडिंग के केस में एक दिक्कत आती है नॉर्मली, कि ऑटो सीडिंग में वो तभी काम करता है, मतलब ऑटो सीडिंग का जो फीचर था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था, वो हुआ था 2016 के अंदर सीक्वल। तो ये फीचर में बेनिफिट क्या है कि हम बैकअप ले करके और वो कोई भी डेटाबेस का बैकअप ले करके उसको सेकेंडरी इंस्टेंस में रीस्टोर कर देता है। पर उसके लिए क्या होना चाहिए, जो डेटा लॉग बैकअप इस सब का जो पाथ होना चाहिए ना, वो सब पे आइडेंटिकल होना चाहिए। रीस्टार्ट लगेगा इस पे, तो रीस्टार्ट पहले कर लेते हैं। रीस्टार्ट करना ही पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको रीस्टार्ट। तो ऑटो शेडिंग तभी वर्क करता है कि जब आपका जो पाथ है ना दोनों सर्वरों पे, कि अगर आपने डेटा का ई ड्राइव में बनाया है और उसका फोल्डर एसक्यूएल डेटा है, तो दूसरे वाले सर्वर पे भी डेटा ई ड्राइव पे होना चाहिए और एसक्यूएल डेटा ही फोल्डर होना चाहिए। लॉग का अगर जी ड्राइव पे है और एसक्यूएल लॉग है फोल्डर, तो जी ड्राइव और एसक्यूएल लॉग ही सेकेंडरी वाले इंस्टेंस पे होना चाहिए, मतलब आइडेंटिकल होना चाहिए। कोई डिफरेंस रहेगा तो ऑटो शेडिंग नहीं काम करता है, तो फिर आपको मैनुअली बैकअप लेकर के वहां पे रिस्टोर करना पड़ेगा। तो ये है ऑटो शेडिंग में। अच्छा, एक चीज और है, जैसे सपोज कर लीजिए कि आपका दो नोड सीक्वल के दो नोड हैं, दो ना आप तीन मान लीजिएगा, आपके तीन सीक्वल के नोड हैं और दो तो तीनों फेलोवर क्लस्टर में है, बराबर। दो पे सीक्वल इंस्टॉल है और एक पे सीक्वल इंस्टॉल नहीं है, और वो भी फेलोवर क्लस्टर में है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि बेसिकली क्या है कि मेरे तीन नोड हैं, तीन नोड में तीनों फेलोवर क्लस्टर में है, दो पे सीक्वल इंस्टॉल है और एक पे सीक्वल इंस्टॉल नहीं है। तो अब मेरे को सीक्वल उस पे इंस्टॉल करना है, ऑलवेज ऑन मेरे पे भाई, उस पे भी मैं चाह रहा हूँ कि वो तीसरे नोड की तरह वर्क करे, तो उस पे सीक्वल में इंस्टॉल कर रहा हूँ और उस पे इंस्टॉलेशन होने नहीं दे रहा हूँ, उस पे एरर आ जाता है। एरर क्या आ जाता है कि ये क्लस्टर में है और ये इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगा, स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन नहीं हो पाएगा। तो अगर ऐसा आता है कि भाई ये क्लस्टर में स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन आप कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, उस नोड को इविक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस नोड को इविक्ट करके और फिर से उसमें पहले सीक्वल इंस्टॉल करेंगे और फिर उसको क्लस्टर में जोड़ेंगे। इविक्ट कैसे करते हैं वो दिखाता हूं कैसे करते हैं कोई भी नोड। तो अब चेक कर लेते हैं मेरा रिबूट होकर के आ गया कि नहीं।
सर ये जैसे ऑलवेज ऑन हमने कॉन्फ़िगर किया तो दूसरा नोड हर हाल में वो रीड ओनली ही होगा ना? ऑलवेज ऑन, हाँ ऑलवेज ऑन हमने कॉन्फ़िगर किया तो वह दूसरा नोड उसको बनाना पड़ेगा, बाय डिफ़ॉल्ट वो नहीं होता है। मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या, मैंने तीन चीज़ें बताएं उसमें कि जो रीडेबल सेकेंडरी होगा उसमें तीन चीज़ें आती हैं, नो आता है, यस आता है और रीड ओनली इंटेंट आता है। ठीक है, तो अगर आपने उसको रीडेबल सेकेंडरी को नो कर दिया तो दूसरा नोड एक्सेसिबल नहीं होगा, यस कर दिया तो अब आप उसको एसएसएमएस में आप टेबल वगैरह देख पाओगे उसके, लेकिन एप्लीकेशन नहीं यूज कर पाएगा उसको, एप्लीकेशन तब तक नहीं हाँ यूज हाँ, कर। मैं वही कर रहा हूँ, हर हर हाल में वो रीड ओनली ही रहेगा, मतलब डेटा इंसर्टेड नहीं होगा उसमें, बराबर? नहीं नहीं, डेटा क्यों नहीं इंसर्ट होगा, मतलब अच्छा। तो एप्लीकेशन से डेटा नहीं इंसर्ट होगा, वैसे तो ये डेटा तो सारा उसमें जाता ही रहेगा जो इसका है। हाँ हाँ, हम्म। बराबर। नहीं, एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में मैंने पूछा, अगर मान लो हाँ हाँ, वैसे नहीं होगा। हम उस ओके, ये तो बहुत अच्छा है फिर। इसमें बैंडविड्थ भी ज्यादा चाहिए होता फिर, ऐसा हुआ? बैंडविड्थ तो मतलब अब ये डिपेंड करता है डेटा कितना है, कितनी ट्रांजेक्शन चलती हैं, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। कम ट्रांजेक्शन है तो बैंडविड्थ कम लगेगा, ज़्यादा ट्रांजेक्शन है तो ज़्यादा ट्रांजेक्शन के ऊपर। नहीं, क्लस्टर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा हूँ। मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो थ्रोपुट और वो सारी चीज़ें आती हैं, ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके ट्रांजेक्शन पे। मैं हम्म। ट्रांजेक्शन जितना भी मेरा कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है, जैसे स्पीड से डेटा मेरा इस प्राइमरी पे आएगा उसी स्पीड से डेटा उस सेकेंडरी पे जाएगा। तो उसके लिए कितनी ओके। ट्रांजेक्शन होती हैं, कितना सारा कुछ, कितना मेरे को, उसी हिसाब से आप कैलकुलेट कर पाओगे कि हाउ मच बैंडविड्थ रिक्वायर्ड, हम्म। ट्रांजेक्शन पर सेकेंड जो है वो कितना है, थ्रूपुट कितना है उसका, तो वो ये सारी चीज़ें उसी पर डिपेंड करती हैं। नहीं, अगर किसी को रिकमेंडेशन देना हो कि भाई आप क्लस्टर से ऑलवेज ऑन पे जाओ तो? मैं वही कह रहा हूँ भाई कि ये टोटल चीज़ें हम जैसे बात कर रहे हैं, तो मैं ऐसे नहीं बता सकता हूँ कि, या कोई भी ऐसे नहीं बता सकता है कि वो एप्लीकेशन और आपके हम्म। यूजर्स के ऊपर है। अगर ऐसा है कि एप्लीकेशन में कि हर घड़ी अपडेट हो रहा है तो वो भाई बैंडविड्थ उसके लिए ज़्यादा हम्म। लगेगा, कम अपडेट हो रहा है तो बैंडविड्थ कम लगेगा, क्योंकि जितना ट्रांजेक्शन आएगा वो ट्रांजेक्शन आपस में रेप्लिकेट होते रहते हैं, तो वो तो उसी हिसाब से। और सिंक्रोनस है तो कोई इशू नहीं है, अगर मान लो सिंक्रोनस है तो बाद में पाइल अप हो जाएगा, बाद में भी रेप्लिकेट हो सकता है ना? सिंक्रोनस में क्या है कि आपका दोनों सिंक में है, कहने का मतलब ये है डेटा इधर भी सिंक है उधर भी सिंक है। और असिंक्रोनस का मतलब ये होता है कि भाई यूडीपी। जैसे दो चीजें थी, मैंने वही बताया, सिंक्रोनस के केस में एक्नॉलेजमेंट टीसीपी हैंड शेकिंग चल रही है कि एक ने भेजा, बराबर दूसरे है। ने एक्सेप्ट किया, फिर वो अपडेशन भेजेगा तीसरे ने, तब आपस में क्लाइंट को अपडेट किया। और वहां पे क्या हुआ कि वहां पे उसने भेज दिया, तुम्हारे पे अपडेट हुआ नहीं हुआ, वो अपना आगे भेज दिया भैया हाँ मिल गया है। अपना भेजता रहेगा। हम्म। बराबर है। तो तो वहां पे क्या है कि अब डेटा नहीं। उधर थोड़ा सा लैक रहा, तो वहां पे क्या होगा कि भाई डेटा लॉस का चांस रहेगा, ये है। हम्म। अभी मेरे ख्याल से 19 में जो है 17 तक तो मतलब यही है कि आपका 5 आप जो है वो बना सकते हैं सिंक्रोनस। नोड। हाँ 9 सेकेंडरी इंस्टेंस आप बना सकते हैं। और 16 में भी 9? हाँ 9 ही है।
तो बेसिकली ऑलवेज ऑन और क्लस्टर में डिफरेंस है, क्लस्टर में हम दूसरे नोड को यूज नहीं कर सकते थे, बराबर ना? क्लस्टर में एक्टिव 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 क्लस्टर का दूसरा नोड भी यूज होगा। एक्टिव एक्टिव में दूसरा नोड तो यूज नहीं कर सकते थे। नहीं कर सकते हो भाई, एक सीक्वल इंस्टेंस एक इधर चल रहा है, दूसरा उधर चल रहा है। उसका एलडीएफ एमडीएफ तो रीड ओनली में होता है ना, तो वो तो कुछ भी नहीं करने देगा, सेलेक्ट कमांड भी नहीं मारने देता। नहीं भाई, एक्टिव एक्टिव का मतलब हो गया कि एक सीक्वल इंस्टेंस मेरा एक पे चल रहा है एक नोड पे, दूसरा सीक्वल इंस्टेंस दूसरे नोड पे चल रहा है, तो दोनों आपस में काम करेंगे। हम लोगों का कैसे है ये? अच्छा, ठीक ठीक, बराबर। अच्छे वाले तो सारे बता दिए मेरे हिसाब से, और कुछ ट्रिकी होना चाहिए, मतलब ट्रिकी ट्रबल शूट टाइप में। हो गया फिनिश। हो गया। तो अभी क्या करते हैं, इसको एक बार रिबूट कर लेते हैं। अभी जैसे है कि जैसे डेटाबेस मेरा है कि सर्टिफिकेट वगैरह का है कि मेरे सर्टिफिकेट है ना, तो उस पे डेटाबेस का बैकअप डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, एक बार वो थोड़ा सा पार्ट देखते हैं। कुछ एक एसएसआरएस का सेशन ले लेंगे कि एसएसआरएस में कैसे रिपोर्ट वगैरह पे काम कैसे करेंगे। तो अच्छा, तो बहुत पूछा जाता है कि कैसे माइग्रेट करते हैं, मतलब बहुत ही हाईलाइटेड है ये, माइग्रेशन कैसे करते हैं। तो मैं दिखाऊंगा उसमें कैसे। अब ज़्यादा सेशन नहीं है, मतलब 2-3 सेशन और होंगे। नहीं, किस में माइग्रेट करते हैं, मतलब एसक्यूएल माइग्रेट कैसे करते हैं? लोअर सर्वर वर्जन। हाँ, कि मेरा कोई एसएसआरएस का है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पर कैसे माइग्रेट करते हैं, तो उसको कैसे देखेंगे बेसिकली। अच्छा, उसमें तो दोबारा ही क्लस्टर मतलब सारा कुछ कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना वापस से, और डेटाबेस रिस्टोर करना पड़ेगा, ऐसा ना? हाँ, डेटाबेस रिस्टोर करना पड़ता है और थोड़ी कुछ सेटिंग भी है। तो सारे के सारे जो रिपोर्ट आपके एक सर्वर पे बने हैं वो दूसरे पे आ जाएंगे। अच्छा, कल छुट्टी है कैसे है? कल तो हम लोगों की छुट्टी है। सेकंड हाफ नहीं है क्या प्रभात जी? हैं? सेकंड हाफ नहीं है क्या? हाँ, सेकेंड हाफ टाइम सेक्स में हमेशा ही होता है ना। वैसे तो 4 दिन ही छुट्टी होती है पूरे साल में, या 4 हॉलीडे है वैसा। तो कल भी करना है तो एक सेशन कर लेंगे कल।
हाँ मैं तो फ्री हूँ, बाकी लोगों से पूछ लो। कल का तो पता ही नहीं। हम्म। हम्म। कल का तो पता नहीं है कि नहीं है क्या है। अच्छा। टेकिंग टाइम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले हम यहाँ पे जा कर के, ये मेरा प्राइमरी है अभी, ठीक है। तो फेल ओवर करें उसको, ऑटोमेटिक करेंगे पहले, फिर डेटा एप्लीकेशन रिज्यूम स्टार्ट डेटा करेंगे। करते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, फेल ओवर कर लेते हैं। पहले वो चेंज करना पड़ेगा ना ऑटोमेटिक। नहीं, ऑटोमेटिक अभी करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा, मैनुअल क्योंकि फेल मेरे ओवर को रखेंगे सेकेंडरी नोट पे भी तो फिर से, करना है। तो वापस। ठीक है। ठीक है, अब ये मेरा प्राइमरी हो गया। हम्म। हो गया, अब इस पे जा कर के अब मैं सेकेंडरी नोट पे जाता हूँ। और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जब ये रिबूट होकर के आ जाएगा, फिर हम उसको ऑटोमेटिक कर देंगे। तो ये पैचिंग में यही इतना करना पड़ता है बेसिकली। क्लस्टर और ऑलवेज ऑन में डिफरेंस क्या हो, ये जो 3 फीचर उन्होंने दिए वो वाले, रीड ओनली, सेकेंडरी, बैकअप, प्रायोरिटी वाले। मेन डिफरेंस है कि क्लस्टर में पूरा इंस्टेंस का पूरा पूरा सर्वर फेलओवर होता है, और यहाँ डीबी हो जाता है। अच्छा। यहाँ तो आप डेटाबेस एक से दूसरे पे आप स्विच कर रहे हो।
पर्टिकुलर डेटाबेस है ना? हम एक काम करेंगे अभी, इसके बाद मतलब एक नोड और ऐड करके, ये कल के सेशन में कर लेंगे। मैं सेटअप बना लूँगा एक नोड और ऐड करके, और उसमें हम बेसिकली क्या करेंगे कि एक नोड ऐड करने के बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि भाई किसमें मतलब कौन से नोड पे क्या चलेगा। 2-3 डीबी ऐड कर लेंगे, किसी नोड पे कोई डीबी चलाएंगे, किसी नोड पे कोई, है ना। ऐसा करके हम टेस्ट करके देख सकते हैं। अच्छा, किसी किसी डेटाबेस पर अगर डीबीसीसी हेल्प नहीं चल रहा तो क्या करना होगा? क्या एरर आ रहा है? मैं नेट पे भी देखा ले, मुझे बोला वो किया भी, लेकिन फिर भी मतलब किसी पे चल रहा है, किसी पे नहीं चल रहा। वर्जन सेम है, सब चीज सेम है कल नहीं, एरर क्या आता है? 16 का। हाँ, वो मतलब अभी नहीं है मेरे पास, लेकिन ट्राई बेसिकली किया। मेरे पास इधर है ना, मैं उधर ही जाके जो सर्वर फ्री होता है यूएटी वहाँ पूरा अपना हाथ साफ कर नहीं, बेसिकली क्या है कि उधर मैं ही एक चीज़ करता बताता हूँ। हूँ कि डीबीसीसी जो इंटीग्रिटी चेक है, हेल्थ चेक के लिए हम जो डीबीसीसी कमांड चलाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि किसी सर्वर पे एग्जीक्यूट नहीं होता। जैसे हमने जॉब चलाई और पता चला वो उस पे आता है कि इंटेंट मतलब अल्टर या इंटेंशनली जो है उसको डेटाबेस पे परमिशन नहीं मिल पा रहा है, रेप्लिका नहीं बना पा रहा हो, स्नैपशॉट नहीं ले पा रहा है, कभी कभी ऐसा कमांड अच्छा। आता है। तो वो बेसिकली क्यों होता है? क्योंकि उसको जब ये जॉब चल रहा है हमारा, तो उस डेटाबेस में क्या करता है, उसको एक्सेस करता है और उसकी एक कॉपी जो है टेम्प डीबी में बनाता है, समझे आप। और उसके बाद वो उसमें सारा कुछ परफॉर्म करता है। तो एक अगर और वो टैम्प डीबी का भी बताना, टैम्प डीबी। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि टैम्प डीबी की फंक्शनैलिटी। उसमें क्या है कि बेसिकली जब तक उसको इंटेंशनली एक्सेस नहीं मिल पाएगा उस डेटाबेस पे, और वो रेप्लिका नहीं बना पा रहा है टेम्प डीबी के अंदर, तभी वो मैसेज देता है। जब भी बैकअप होता है या ये जॉब चलते हैं, इंटीग्रिटी चेक चलता है आपका, चेक इंटीग्रिटी जो डीबीसीसी का कमांड है हेल्थ वाला, वो चलता है, तो क्या करता है वो टेम्प डी उस डेटाबेस का एक कॉपी बनाता है उसके अंदर, टेम्प डीबी के अंदर, और फिर उसमें सारा एक्टिविटी परफॉर्म करता है। मैंने बताया था कभी स्नैपशॉट की क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब यूज ऑफ स्नैपशॉट। तो स्नैपशॉट क्या है कि जैसे अभी कोई डेटाबेस है, और मैं उसमें कुछ काम करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरा प्रोडक्शन है और प्रोडक्शन में मुझे कोई टेस्टिंग करनी है, तो प्रोडक्शन में तो कोई टेस्टिंग करने देगा नहीं या फिजिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि उसका एक स्नैपशॉट बना लेते हैं, ठीक है। स्नैपशॉट बना लेते हैं, उसके बाद फिर क्या करते हैं, उसको हम वो आईपी हम दे देंगे स्नैपशॉट वाली, एप्लीकेशन वाले वो कनेक्ट कर लेंगे और अपना स्नैपशॉट उसमें जो भी अपना चेंजेस करने हैं, अपना वो डेटा का एक्चुअल डेटा पे अपना वो सारी चीज़ें एक्सेस करके देख सकते हैं, उनको एक्चुअल डेटा में। फिर जैसे ही उनका काम खत्म होता है, स्नैपशॉट ड्रॉप मार दो, काम खत्म। और इनकेस अगर हमने स्नैपशॉट बनाया है और इनकेस मेरा डेटाबेस ओरिजिनल डेटाबेस ही क्रैश हो गया, तो हम उस स्नैपशॉट से डेटाबेस को रिकवर भी कर सकते हैं। अच्छा, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। उस स्नैपशॉट से जिस टाइम पे भी हमने स्नैपशॉट लिया, वो पूरा डेटाबेस उस टाइम तक रीस्टोर हो जाएगा। उसके बाद अगर ट्रांसफर लॉग होगा तो ट्रांसफर लॉग भी रिस्टोर हो जाएगा उस पर बाद का, अगर होगा तो,
ऐसा? हम्म, क्योंकि उसमें क्या है कि नहीं, जितने तक होगा उतना ही होगा, उसके बाद मेरे ख्याल से नहीं होगा कुछ और फर्दर। नहीं क्योंकि होगा? रेप्लिके उसमें क्या है कि अच्छा, फुल ये डेटाबेस थोड़ा, बैकअप नहीं होगा हाँ, इस ये वजह से ऐसा मैकेनिज्म कह रहे अलग हो? है। उसमें डेटाबेस वाला वो मैकेनिज्म नहीं अच्छा। चल रहा है उसमें। तो हम्म। क्योंकि उसमें क्या होता है कि ये जैसे जब हम डेटाबेस रिस्टोरेशन करते हैं तो नो रिकवरी मोड में होता है, रिकवरी में नहीं होता हम्म। है। नो रिकवरी मतलब अभी कुछ और हम्म। डेटा बैकअप छूट रहा है, उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। पर यहाँ तो पूरा रिकवर करके देगा वो, तो उसमें फिर से आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ओके। अच्छा, विद रिकवरी में वो उसको रिस्टोर करेगा, बराबर ना? हाँ। ऐसी उड़ती खबर आई है कि भाई जनवरी से आईटी में बूम आने वाला है। रेडी हो जाओ, बी रेडी। नहीं, सच्ची खबर है ये, यहाँ से भी है। अच्छा, देखेंगे। ऐसा क्यों पता नहीं। ऐसा क्यों पता नहीं। कोविड का तो कुछ हुआ है नहीं अभी तक, वैकेंसी का। भैया वो अनिल जो आते हैं वो कौन सी कंपनी में है? रेली गया। अच्छा। मैंने सेशन के बाद कॉल करूंगा, 5 मिनट।
कंप्लीट हो गया। Okay. No, just you can just reboot it. ये लैपटॉप पे कर रहे हो, डेस्कटॉप पे है ये वाला? हम्म डेस्कटॉप पे कर रहे हो, लैपटॉप पे? लैपटॉप। Okay, let's connect it here. So resume the data transfer. And just change the okay. Let me check the version. Four 4073. So it is updated here. So basically in this way we can update the patching on the AG. ठीक है, yes we can wind up. कल है अवेलेबिलिटी तो कल हम चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं तो अवेलेबल हूँ, बाकी से देख लो जब तक तैयार हूँ तो।